Good morning, everybody. Namaskar. I hope I'm audible and visible to all of y'all. Can I have a thumbs up? Can I have the camera switched on, please? Rashmi ma'am, Tabassum ma'am, Kiran sir, Kavita ma'am. Can I have the camera switched on, please? Neelam ma'am. It's a request to all the participants to please switch on your cameras. Yes. Quite a lot of cameras going on switched on. Shreyan sir, Vinita ma'am, Hima ma'am, can you please switch on a camera? Shelly ma'am. Yes. Yes, thank you so much. So, Namaskar, a very warm welcome to all of y'all to today's Ameda webinar. So, let me introduce myself. This is Shalini Bhagwat, and I'll be your host for today's session. I am a proud member of Avisa Healing and Fitness Private Limited, which is an organization that is dedicated to helping people achieve their best health through natural and proven methods. Today, we're going to explore a unique and empowering approach to weight management. And this program is not just about losing or managing weight. It is all about transforming your health and your overall well-being. So, to guide us on this incredible journey, I have the honor of introducing Swami Raj Vibhuji, who is a rare and revered Kumbhak yogi. Swamiji has transformed thousands of lives of people, not only across India, but also across Europe and the US. His deep understanding of the human body, its natural rhythms, and its healing potentials are truly remarkable. In this session, Swamiji will share his insights and methods that go beyond just weight loss. He will guide us towards understanding, just a moment, how the body can be restored to its natural, balanced state, free from disease and full of vitality. So I invite you all to listen to Swamiji closely, because this is just not a talk about weight management, but it is an opportunity for each one of us to learn a holistic approach to achieving perfect health and balance. So now, without further delay, I would like to welcome Swamiji to lead us into his empowering journey. Thank you so much. I'll just spotlight Swamiji. Give me a sec, please. Yes. Namaskar, Swamiji. So, Ameda Sleshma Shuddhi. So, do you know when a star has to die, what happens to it? जब एक तारे को खत्म होना होता है तो क्या होता है? वो फैलता है कि नहीं? वो फैलता है, वो बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अगर कोई चीज फैल गई है, कहीं पर भी अगर आप देखें, मानव जीवन में या किसी जीवित जगत में देखें, किसी लिविंग, एनी काइंड ऑफ अ लिविंग एंटिटी, when it is expanding, that fundamentally means that the energy within that life has gone down. यानी जीवन उसका कमजोर हो गया। अगर कमजोर होगा कुछ तो वो फैल जाएगा। ठीक है, एक पक्ष इसका ये है। दूसरा पक्ष इसका होता है, जब आपकी हीलिंग हो रही हो कहीं, तो भी वो चीज
फैलेगी। सूजन आती है ना, हैव यू सीन स्वेलिंग एनीवेयर? वहां पे क्या हो रहा है? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग विच इज हैपनिंग। अच्छा, अभी आपने अपने टाइम पे 25-30 साल पहले, 25-30 years बैक, you would have been in school or college, या उससे थोड़ा पहले कुछ लोग। इफ यू स्टैंड आउटसाइड अ स्कूल टुडे, अगर एक स्कूल के बाहर आप खड़े हो जाएं आज, और 30 साल पहले स्कूल के बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते, तो दोनों में कुछ फर्क नजर आएगा क्या? साइज बड़ा हो गया ना। हाँ, बच्चे आप देखेंगे, बिल्कुल यंग बच्चे मगर साइज में बड़े हैं। तो गूगल करके देखिए, इफ यू गूगल इट डाउन, चाइल्डहुड ओबेसिटी इज एन एपिडेमिक। और उन बच्चों को आप कुछ करने के लिए बोले, कोई काम दे दें, वो 50 बहाने बनाएंगे ना। हाँ, यानी क्या हो गया? ह्यूमन लाइफ कमजोर हो गई ना। याद है आपको, पहले जो घर का बुजुर्ग होता था वो इतना काम नहीं, बच्चों को बोलता था ये करो वो करो, बच्चे बड़े खुश होते थे, दौड़ दौड़ के सभी काम करते थे। आज आप बच्चों को देखें, दे डोंट वांट टू डू, दे फील एज इफ एवरीथिंग इज अ लोड ऑन देयर सिस्टम। पढ़ाई कराओ तो पढ़ाई नहीं होगी, काम कराओ तो काम नहीं होगा। एंड देन सरकारें बोले अच्छा कोर्स कम कर देते हैं, है ना, पासिंग मार्क्स। पहले क्वेश्चन बड़े बड़े आंसर लिखते थे ना उसके। उसके बाद रूल आया, नहीं नहीं, पहले 10 क्वेश्चन होते थे क्वेश्चन पेपर, फिर कहते थे नहीं नहीं, ज्यादा करो, 25 करो, छोटे छोटे आंसर लिखें बच्चे। फिर 25 क्वेश्चन आने लग गए। फिर पता चला मल्टीपल चॉइस आने लग गए, है ना, कि चार में से एक चूज कर लो। फिर धीरे धीरे करके मल्टीपल चॉइस में से भी ऐसे चॉइसेस आने लगेंगे कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है, गधा होता है, उल्लू होता है। वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? कहाँ जा रहे हैं हम? ये तो सोचना पड़ेगा हमको। तो दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच कि आप किताबें खत्म कर दीजिए, बच्चों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही पास कर दो। द चाइल्ड विल ऑब्वियसली फेल इन हिज और हर लाइफ। हम फेलियर्स बना रहे हैं, पैदावार फेलियर्स की कर रहे हैं। इसी तरीके से एक बहुत गलत डायरेक्शन हमने ले लिया जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, द करंट डिस्पेंसेशन ऑफ ट्रीटमेंट, दे हैव टेकन अ कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच टू लाइफ। मुझे बताइए कौन सी बीमारी कम हो रही है? कोई एक बीमारी आप बता दीजिए जो कम हो रही है अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। कोई एक बीमारी बता दीजिए। अभी एक स्टडी कर रहे थे, ये वेस्ट की स्टडी है, कोई किसी ने बताया कि वो कह रहे हैं कि इन कमिंग टाइम कैंसर विल बिकम एपिडेमिक। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग 5 years, from 5 years, कि these disease will become epidemic because the approach is not at all in the right direction। गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, हार्ट अटैक कम नहीं होने वाला। कुछ भी कर लो, नई दवाइयां बना लीजिए आप, और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितनी नई दवाइयां मार्केट में आएंगी उतनी बीमारी बढ़ जाएगी।
आप और ज्यादा माइक्रो लेवल पे चले जाइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने लग जाइए, पूरा ह्यूमैनिटी म्यूटेट कर जाएगा, ठीक नहीं होगा। और इसको मैं थोड़े कड़े शब्द में कहता हूं, फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति होती है। मानवता के इतिहास में फिरंगी सबसे मूर्ख हुए। आपने अपना हेल्थ उनको डेलीगेट कर दिया, उनके हाथों में दे दिया। अब आपकी हालत खराब होगी होगी। बिकॉज द अप्रोच टू लाइफ, दे डोंट नो हाउ लाइफ है, उनको लाइफ के बारे में रत्ती भर मालूम नहीं। भोजन से आपको एनर्जी मिलती है क्या? अभी देखिए, एक चीज मैंने बताया, जो चीज फैली हुई है वो कमजोर है। हम उल्टा सोचते हैं, हम उल्टा सोचते हैं। अब बताइए, भोजन से एनर्जी, फूड गिव्स यू एनर्जी? नो, फूड डजंट गिव यू एनर्जी। आपको एक एनर्जी का कोटा मिला हुआ है लाइफ का। उस एनर्जी से यू डाइजेस्ट फूड और यूटिलाइज फूड। आप भोजन का इस्तेमाल उस ऊर्जा से करते हैं, और दिन प्रतिदिन आपकी वो ऊर्जा कम होती जाती है। योर एनर्जी लेवल गोज डाउन। जितना भोजन करेंगे उतने कमजोर हो जाएंगे, मालूम है आपको? जितना खाएंगे उतना कमजोर हो जाएंगे। 50 साल का, 60 साल का, 70 साल के इंसान ने 70 साल भोजन किया, कमजोर हुआ, ताकतवर हो गया? कमजोर हो गया। तो गलत सोच के सही जगह तो नहीं पहुंच सकते। थॉट प्रोसेस ही अगर गलत हो तो सही जगह कैसे पहुंचेंगे? तो आपको कुछ फंडामेंटल्स मैं बता रहा हूं, सम फंडामेंटल, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जितना ताकतवर इंसान होता है वो उतना ही गठीला होता है, फैला हुआ नहीं होता। गठीला होता है, शरीर उसका बंधा हुआ होगा। शरीर अगर खुलेगा तो इंसान मोटा हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा तो मोटा हो जाएगा। दूसरा, अगर शरीर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो फैट बढ़ा देगा। अच्छा, इसको शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर में चीजें बनती हैं ना, व्हेन यू ईट समथिंग इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू टिश्यूज। जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन आपके शरीर में परिवर्तित हो जाता है। तो पहली बात, जो आप भोजन करते हैं वो डायरेक्टली आपको एक्सेसिबल नहीं होता है ना। प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। मुझे एक बात बताइए, चिकन खा के कितने लोग चिकन बने? कोई भी नहीं बना। सभी वही इंसान ही रहे। बकरा खा के कोई बकरा नहीं बना, है ना। पाश्चात्य देश के लोग सुअर खा के सुअर नहीं बने। हम गाजर खा के गाजर नहीं बने, बैंगन खा के बैंगन नहीं बने। इसका मतलब ये होता है, आप जो खाते हैं शरीर उसको अपने में ढाल देता है। आपका स्किन कलर आपके स्किन कलर जैसा ही आएगा, यानी जिस जगह पे जैसी स्किन है वैसी ही आएगी। आपका शरीर कोई भी चीज वैसे का वैसा एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसे अलग अलग टिश्यूज में ढालता है। यानी प्रोटीन खा के वो प्रोटीन आपको कभी मिलता ही नहीं है। शरीर उस प्रोटीन को तोड़ देता है, अमीनो एसिड बनाता है, अपनी ही चेन बनाता है शरीर प्रोटीन की। तो आप ये सोचेंगे प्रोटीन खा के प्रोटीन मिल जाएगा, तो ऐसा हुआ नहीं। पिछले 100 साल में मानवता कमजोर ही हुई है, ताकतवर हुई नहीं इतना प्रोटीन खा के। बीमारी बढ़ी है हमें। तो हम बहुत ही गलत दिशा में चले। भोजन हमेशा, फूड कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू प्लाज्मा। फूड से प्लाज्मा या रस बनता है। आपका शरीर भोजन का रस निचोड़ लेता है, रस। द रस कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू रक्त। दैट प्लाज्मा कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ब्लड। रक्त बनता है, खून बनता है। कितना खून बनेगा डिपेंड करता है आपके शरीर में कितनी स्ट्रेंथ है, देह बल कितना है।
देह बल, शरीर का बल रक्त में कन्वर्ट होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद द अमाउंट ऑफ ब्लड इट मेक्स फ्रॉम प्लाज्मा। इसीलिए प्रजातियों ने पहले अपने आप को विभाजित किया रक्त के आधार पे। वो कहते थे हमारा रक्त अलग है, और उसके बाद रक्त के अगर आप इंग्रेडिएंट देखें तो वही नजर आएंगे सब में। तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं चेंज है। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर आप चीजों को देखें तो बहुत बदलाव है। चावल अलग अलग जगह पे होते हैं, मगर सभी चावल का टेस्ट अलग होता है। अगर आप इंडिजिनस ब्रीड देखें तो फलों का अलग अलग टेस्ट होता है ना। अब काट के देखेंगे तो एक ही चीज नजर आएगी। तो साइंस की गलती क्या हुई? वो रिडक्शनिस्ट बन गया। साइंस को रिडक्शनिस्ट काट के केवल देखने के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए था। काट काट के पृथ्वी को ही काट के खराब खत्म कर दिया। तो रिडक्शनिस्ट तरीका ही साइंस होता है ऐसा नहीं है। कुछ हद तक तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर ज्यादा अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संसार सिंगुलरिटी पे नहीं चलता, डुअलिटी पे चलता है ना। तो ये काट के देखना साइंस नहीं कहलाया जा सकता। तो आज के समय पे जिसे आप साइंस कह रहे हैं उसमें साइंस जैसी कोई चीज नहीं है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, जब हम क्वालिटी को देखते हैं किसी चीज के तो पता चलता, भेद पता चलता है। इंसान तो इंसान है, सभी इंसान एक है? नहीं, सभी इंसान एक बिल्कुल भी नहीं है। अगर सभी इंसान एक हो जाएंगे तो ये दुनिया का कोई अर्थ नहीं रहेगा। डाइवर्सिटी ही जीवन का अर्थ पैदा करता है। तो आप स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो जीवन के विरुद्ध है। 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल पूरी दुनिया को खाना है। स्टैंडर्डाइजेशन जीवन के आ, मूलभूत नियम के विरुद्ध है। डाइवर्सिफिकेशन इज लाइफ। और डाइवर्स आप क्वालिटी देखेंगे तब पता चला। अब अफ्रीकन और यूरोपियन एक तो नहीं दिखते, ह्यूमन तो होते हैं, मगर उनकी क्वालिटी भी अलग है। भारत के ही उत्तर भारतीय क्षेत्र के लोगों की क्वालिटी अलग है। ईस्ट में जाएंगे तो क्वालिटी अलग हो जाएगा। 100 किलोमीटर में मानव की क्वालिटी अलग हो जाती है। भोजन अलग हो जाता है, कपड़े अलग हो जाते हैं, भाषा अलग हो जाती है। ऐसा देश केवल भारत ही है। यानी अभी तक हमने इसमें लाइफ को पाल के रखा हुआ है। बाकी दूसरे देशों में लाइफ कुछ समय तक जबरदस्ती पैदा बना के रखते हैं, फिर खत्म हो जाता है। ऐसा ही उनकी इकोनॉमी भी है, ऐसा ही उनका सब कुछ है। तो क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो रक्त अलग अलग होता है। तो उसी क्वालिटी वाइज हमने लोगों को विभाजित किया, डिवाइड भी किया था कि आपको ये काम सूट करेगा, दूसरे लोगों को दूसरा काम सूट करेगा। तो वर्ण व्यवस्था भारत में एक पक्ष उसका रक्त की क्वालिटी को देख के हुआ था। बट मूलभूत नियम देखें तो फंडामेंटल्स ऑफ क्रिएटिंग ब्लड इज देह बल। आपके शरीर का बल, आपका शरीर आपके शरीर में रक्त बनाता है। दैट नाउ दैट रक्त, और इसको मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा। आजकल कुछ काम बहुत खतरनाक कर रहे हैं। नाउ टू कन्वर्ट द ब्लड इनटू टिश्यू, रक्त को अगर आपके कोशिकाओं में बदलना है, टिश्यू सेल्स में बदलना है, जिससे आपके ऑर्गन्स रिजुवनेट होते, रीजनरेट हो, तो उसको कंडेंस होना पड़ेगा, उसको गाढ़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज आपके अंदर रीजनरेशन की स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाएगी। आप में से कितने लोग हार्ट मरीज हैं? दे हार्ट डिजीज है या ब्लड प्रेशर है? कितने लोगों को है? किसी को है यहाँ पे? इकोस्प्रिन, एस्प्रिन आपको रेगुलर लेने को बोला गया।
कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको खाइए, आपका रक्त जो है पतला रहेगा, यानी स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाएंगे। ये लीनियर थिंकिंग है। मगर दूसरा पक्ष क्यों नहीं देख रहे हम? क्योंकि डुअल लाइफ है, एक ही पक्ष देख रहे हैं। दूसरा पक्ष यह है कि आपके शरीर में नए टिश्यूज बनने की गति धीमी हो जाएगी, रीजेनरेशन आपका कमजोर हो जाएगा। अगर आपको कोई चोट लगी है तो जल्दी ठीक नहीं होगी, आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी, ऑर्गन्स जो हैं वो कमजोर हो जाएंगे, अगर आप रक्त को पतला करते गए करते गए करते गए रोज के रोज। अभी मैं भारत भ्रमण करके आया, 7,500 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, स्टार्टेड, वेंट टू कन्याकुमारी एंड बैक। उसमें बड़े सारे मंदिरों में घूम के आया, एंड देयर वाज अ पर्सन विथ मी एंड ही वाज अ हार्ट डिजीज पेशेंट, ही वाज टेकिंग इकोस्प्रिन एंड स्टैटिन, और उनको इन्फेक्शन हो गया। तब मैंने उनको एक बात कहा, आप ये एस्पिरिन छोड़ो, स्टैटिन छोड़ो, नहीं तो ठीक नहीं हो पाओगे। एक एलर्जी उनके हाथ में थी जो कि 3-4 महीने से ठीक नहीं हुई थी, और वो 3 दिन में ठीक हो गई, वो छोड़ने के बाद, दवाई छोड़ने के बाद। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा खून को पतला कर रहे हो, टिश्यूज कैसे रीजनरेट होंगे? कम से कम ये भी तो समझ होनी चाहिए कि कब इसको पतला नहीं करना है। दूसरा पक्ष, डुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यहां से पता चलता है फिरंगी कितने मूर्ख होते हैं। रक्त को आपको कन्वर्ट करना, रक्त कन्वर्ट होगा टिश्यूज में, मांस में कन्वर्ट होता है, मसल्स में कन्वर्ट होता है। अगर मसल में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो श्लेष्म ही रह जाएगा। रक्त में मेनली क्या होता है? प्लाज्मा। हाँ या ना, पढ़ा है आपने? वही तो टिश्यूज में कन्वर्ट होता है। तो अगर नहीं होगा, मसल्स नहीं बनेगा, तो क्या रह जाएगा? वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेद और मसल्स बनाने के लिए धातु बल, आपके शरीर में धातु बनाने की शक्ति, धातु बल होना चाहिए। रक्त बनाने के लिए देह बल होना चाहिए, जिसका रक्त जितनी अच्छी क्वालिटी का और जितना अच्छा बन रहा है शरीर में, उसका मतलब उसके शरीर का बल बहुत है। लेकिन धातु बल, सेकेंड स्टेज, धातु बल, धातु बल मसल बनाएगा। अगर धातु बल आपके शरीर में नहीं है, तो उसका एक और कारण है कि आपके शरीर में अग्नि का बल नहीं है, जठर अग्नि कमजोर है, पाचन की शक्ति कमजोर है, गृहपत्य अग्नि नहीं है, मेटाबॉलिक हीट नहीं है। अगर मेटाबॉलिक हीट नहीं है तो फैट बनता जाएगा, यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ये पहला पक्ष है। ठीक है, इसके आगे भी बता देता हूं। धातु बल से मसल्स बनते हैं। अग्नि बल अगर कमजोर है तो फैट ज्यादा बनेगा, अग्नि बल अगर अच्छा है तो मसल तो बनेंगे ही बनेंगे, मगर साथ में जो मेद है आपके शरीर का, मेद प्रॉपरली यूटिलाइज होके बोन्स बनाएगा, अस्थि, अस्थि, मनोबल, मनोबल जितना है उतना अस्थि, हड्डियां मजबूत होती है। हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। अगर आपके शरीर का सब कुछ बैलेंस्ड है तो बोन मैरो अच्छे से बनेगा। वात पित्त कफ अगर बैलेंस्ड है, दोष बल, दोष नहीं है शरीर में, तो बोन मैरो ठीक से बनेगा। दोष बल। और उसके बाद आखिर में आता है ओजस बल, यानी कि आपके अंदर जीवन की कितनी इच्छा है, जीवन जीने की जो इच्छा होगी वो ओजस से आती है, ओजस बल। और उसी से स्पर्म और ओवम, यानी शुक्र, शुक्राणु बनते हैं आपके शरीर में। ओजस बल से शुक्राणु बनते हैं, मगर ये आपस में जुड़े भी हुए हैं। हमारा फोकस कहां पे रहेगा? धातु बल, अग्नि बल। शरीर में फैट बढ़ रहा है,
यानी कि आपके शरीर में मसल्स नहीं, और मसल डेवलप नहीं हो रहे ठीक से, मसल लॉस भी होता है ऐसे में, और फैट बढ़ रहा है, अग्निबल कमजोर है। धातु बल, अग्निबल, हमारा फोकस अग्निबल पे रहेगा। अग्निबल का मतलब क्या होता है? आपके शरीर की गर्मी जैसे जैसे कम होती जाएगी, डाइजेशन की एबिलिटी, जठर अग्नि जैसे ही कमजोर होती जाएगी, आपके शरीर में फैट बढ़ता जाएगा। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला पार्ट क्या कहता है? आपके शरीर का मेटाबॉलिक हीट, यू हैव टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक हीट ऑफ योर बॉडी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। बट हाउ विल यू इंक्रीज द मेटाबॉलिक हीट? मेटाबॉलिक हीट बढ़ाने का तरीका क्या है? तो कोरिलेट कीजिए, शुरुआत मैंने कैसे किया। कोई भी चीज फैल रही है तो कमजोर हो गई, अंदर से कमजोर हो गई, इसकी जोर लगाने की क्षमता कमजोर हो गई। ये बच्चों के साथ, या कोई भी थोड़ा फैला हुआ इंसान, थोड़ा वेट ज्यादा है, उनके साथ कोरिलेट कीजिए कि वो जोर नहीं लगा सकते शरीर से ज्यादा, प्रोकास्टिनेशन करेंगे, बहाने बनाएंगे, हमेशा पड़े हुए रहने की कोशिश करेंगे। तो जोर लगाने की क्षमता ही आपकी अग्नि बल है। जोर कैसे लगाते हैं आप? सांस रोक के लगाते हैं। कुंभक, कुंभक क्षमता पूरी मानवता की कमजोर हो गई है। इसीलिए मैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज क्या बोलता हूं? क्या है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट? इट इज कुंभक थेरेपी। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज कुंभक थेरेपी। इसका ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। कोर को अगर आपको एड्रेस करना है, अगर जड़ को एड्रेस करना है, तो आपको कुंभक करना ही पड़ेगा। तो प्रोग्राम में हम थोड़ा पहले तो बल बढ़ाएंगे, उसके बाद शरीर का शुद्धिकरण करेंगे। पंचकर्मा, अ, पंचकर्मा एग्जैक्टली ना बोले हम अगर कहेंगे कि आपके शरीर में सफाई करेंगे एक तरीके से। षटकर्म योग का एक ब्रांच है षटकर्म, हालांकि वो योग का ब्रांच बाद में उसको बनाया गया। षटकर्म शुद्धिकरण आयुर्वेद का एक हिस्सा था। षटकर्म पंचकर्म का ही एक ब्रांच था। उसमें हम जैसे लघु शंख प्रक्षालन, इस तरीके की चीज आपको गाइडेड वे में कराएंगे, थोड़ा डाइट सही करेंगे। उससे क्या होगा? विद इन फ्यू डेज यू विल लूज मेनी इंचेस। आपका इंच लॉस इमीडिएटली हो जाएगा। तो 2-3 इंच तो आप देखेंगे कि 4-5 दिन के अंदर ही लूज हो जाएगा। अच्छा, उसके अंदर कर क्या रहे हैं? उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली व्हेन द बॉडी इज नॉट यूटिलाइजिंग फूड प्रॉपरली, आपका शरीर अगर भोजन नहीं पचा रहा ठीक से, बना या यूटिलाइज यूज नहीं कर पा, आप एक एग्जांपल ले। आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन होता है, कार का इंजन जो होता है ना, आईसी इंजन। अगर आईसी इंजन ठीक से पेट्रोल को यूज नहीं कर पा, या डीजल को यूज नहीं कर रहा पूरे तरीके से, तो क्या देखेंगे आप? एक तो वो धुआं बहुत देगा, दूसरा उसके अंदर जो कार्बन का डिपॉजिट, गंदगी ज्यादा जमेगी, तो इंजन के चोक होने के चांस होते हैं। ऐसे ही अगर आपका शरीर भोजन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा ठीक से, तो अंदर गंदगी ज्यादा जमेगी ना, क्योंकि यूज नहीं हो पा रहा, तो इंटरमीडियरीज ज्यादा बन रही हैं। जो टिश्यूज बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे, तो टॉक्सिन्स ज्यादा बन रहे हैं। और ये टॉक्सिन्स आपके शरीर में जहां जगह मिलता है वहां पे रुक जाते हैं, जिससे दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, आइटिस, इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये जैसे ही शंख प्रक्षालन आपको करवाएंगे, उसके बाद में डाइट रेगुलेट करें, क्योंकि एक तरीके की डाइट चाहिए फिर आपको। तो आप इंचेस एकदम से लूज कर जाएंगे। लेकिन एक और चीज जो आपको लगेगी, द अदर थिंग दैट यू विल फील इज, यू विल फील वेरी लाइट। आपको हल्का महसूस हो। इसका असली रीजन क्या, वो भी बता देता हूं, क्योंकि वहां तक शायद सभी की सोच नहीं पहुंचती है। हम आपके शरीर में
जो गति है वायु की, उसको नियमित करने का काम कर रहे हैं। द फ्लो फैक्टर इन योर बॉडी, आपके शरीर में कोई चीज फैलती है ना, अगर टॉक्सिन्स होंगे ठीक से फैल नहीं पाएंगे। द ट्रांसपोर्ट फैक्टर, द फ्लो फैक्टर, उसको हम फिक्स करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द डिजीज दैट हैपन्स, जितनी भी बीमारियां हैं जो होती हैं, वो किस वजह से होती हैं? वायु बिगड़ने की वजह से होती है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? आपके शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीजों को ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। कुछ रुकावट आ रही है, तो वायु दोष को सुचारू करते हैं, ठीक करते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक नियमित तरीके का भोजन अगर आप लेंगे तो कुछ ही समय में काफी अलग अलग प्रॉब्लम्स में देखेंगे आपको आराम मिल जाएगा। क्रॉनिक डिजीज खास, मेटाबॉलिक डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इस तरीके के बहुत सारे चीजें हैं जिसमें कि आराम मिल जाएगा। बट ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी। आराम तो दे दिया जाएगा आपको भोजन कम खिलाएं तो भी आपको आराम मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, है ना। कुछ समय के लिए आपका बीपी या थायराइड या डायबिटीज, शुगर लेवल आप कम कर सकते हैं, मगर इससे वो ठीक हो गया ऐसा नहीं है। ठीक तो आपके बल से ही होगा। यथा बलम तथा चिकित्सा, जितना शरीर का बल होगा उतना ही चिकित्सा होगी। शरीर ठीक करेगा। कौन ठीक करता है आपको? शरीर ठीक करता है। कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। कोई दवाई आपको ठीक कर ही नहीं सकती। ये जीवन के नियम के विरुद्ध है। इसीलिए आयुर्वेद का पहला नियम, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद इज यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना शरीर का बल होगा उतना ही शरीर अपने आप को ठीक कर पाएगा। और एक महादेव पार्वती संवाद चल रहा था। पार्वती महादेव से पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम, इस जीवित जगत का बल क्या है? और महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। इसीलिए कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इंचेस लूज हो जाएंगे और उसके बाद में आपको डाइट रेगुलेट कर देंगे, फिर कुंभक थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। हम्म। अच्छा, श्लेष्मा फैट दो तरीके के होते हैं। एक आपके शरीर के अंदर टिश्यूज के बीच में होता है, उसे विसरल फैट कहते हैं। दूसरा फैट शरीर के बाहर की तरफ में दिखता है, वो एडिपोज फैट कहते हैं उसको। एडिपोज फैट। फैट प्रोटेक्टिव होता है, मेद हमेशा प्रोटेक्टिव होता है। इसको क्रिमिनल ना बनाए, पहली बात, फैट को क्रिमिनल नहीं बनाना। क्या कमी है उसको ठीक करना। पतले लोगों में भी एडिपोज फैट कम होगा लेकिन विसरल फैट ज्यादा हो सकता है। उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आपको अगर टेस्ट करेंगे तो मिल सकता है। फैटी लिवर हो सकता है, बाहर से पतले दिख रहे हैं अंदर से फैटी लिवर है। तो गुनहगार जिसे आप अगर बोलें कि फैट वो कौन सा फैट है जो कि क्रॉनिक डिजीज का कारण बन सकता है, तो वो विसरल फैट है। बाहर दिखने वाला फैट नहीं, अंदर जो फैट होता है वो। यहां तक कैसे पहुंचेंगे आप? बाहर से तो लिपोसक्शन भी करवा सकते हैं, है ना। सर्जरी करवा के फैट निकाल लिया, चूस लिया, फैट को बाहर फेंक दिया, मगर एडिपोज फैट का कोई तो इलाज नहीं है। और वो तो बढ़ ही रहा है दुनिया में। सारी बीमारियां जितनी हो रही हैं कहीं ना कहीं आपको विसरल फैट उसका कारण है। वो कब होगा? तो फैट का एक और काम है जो हमें समझना पड़ेगा, इट इज लुब्रिकेटिंग इन नेचर। फैट लुब्रिकेटिंग होता है ना। सो व्हाट इट डज, इट प्रोटेक्ट्स यू। ये आपको कोई भी लुब्रिकेटिंग चीज आपको जीवन के संघर्ष से
बचाती है। अगर लोड स्ट्रेस जिसे आप कह रहे हैं वो जीवन का संघर्ष है, बल्कि जीवन का संघर्ष के बजाय अगर मैं ऐसे शरीर का संघर्ष बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसे आप स्ट्रेस कहते हैं वो शरीर का, मानव शरीर का संघर्ष है, एक तरीके से स्ट्रगल है। अच्छा, शरीर जब बोलते हैं तो मन, माइंड बॉडी से अलग नहीं होता। अब मैं एक बहुत कमाल की चीज जोड़ रहा हूं इसके साथ में, इसको पकड़िए तो बड़ा इसको सॉल्यूशन निकल के आएगा। फिजिकल फ्रिक्शन या शारीरिक संघर्ष और मानसिक संघर्ष अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेंटल इश्यूज, मेंटल मनोविकार। मनोविकार सबसे बड़ा इशू है, और वो आपके शारीरिक संघर्ष से अलग नहीं है, एक ही है। फिजिकल एंड मेंटल ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है, एक ही बात है। आपका शरीर संघर्ष कर रहा होगा तो आपका माइंड संघर्ष कर ही रहा होगा। इस संघर्ष, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये शरीर फैट, विसरल फैट, अंदरूनी फैट, कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ाता है। तो अगर मेंटल टेंशन भी किसी को होगा तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। मानसिक संघर्ष होगा तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। एक और तरीके से इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। जैसे मैंने बताया, शरीर में अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रही, हाँ, और उसका एक कारण विसरल फैट होगा। फैट बढ़ेगा तो शरीर में ट्रांसपोर्टेशन कम होगी। ऐसे में वात विकार, वात दोष पहली चीज है जो आती है, पहली चीज आती है। वात, अगर हम कहें इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें ये तो ये प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ बॉडी बनेगा। मानव शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम खराब हो रहा है, इस वजह से इसका प्रूफ क्या है? ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। ये प्रूफ है प्रेशर इकोसिस्टम खराब होने का। इसी को आयुर्वेद के टर्म्स में बोलेंगे वात विकार पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो ठीक क्या करना है आपको? पहली चीज जो आपको ठीक करनी है वो क्या करना है? प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करना है आपको अपने शरीर का। कैसे करेंगे? बिना कुंभक किए तो प्रेशर आप बना नहीं सकते अपने शरीर में। तो प्रेशर इकोसिस्टम आप कुंभक करके ही ठीक कर पाएंगे, और कोई तरीका नहीं। यानी कि अगर शरीर के अंदर फैट, विसरल फैट अगर बढ़ गया और ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही चीजें, इसका एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। हर एक इंसान के अंदर किसी ना किसी लेवल का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। आप सभी बीमारियों को इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपका सेल, शरीर की कोशिका इंसुलिन ले ही नहीं रही है। इंसुलिन के साथ ग्लूकोज जुड़ा होता है, और इंसुलिन अगर कोशिकाओं में नहीं गया, ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो ग्लूकोज कहां मिलेगा? खून में ही मिलेगा, ब्लड में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कोशिका में अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। और इंसुलिन भी मिलेगा। तो दो चीजें मानव के शरीर में देखी जाएंगी: हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है, और उसकी वजह से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है। तो क्या क्या करवाएगा? पीसीओडी बढ़ रहे हैं ना, सिस्ट, सिस्ट शरीर के अंदर सिस्ट का बनना, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस महिलाओं में, यूट्रस में ग्रोथ का फैक्टर ठीक नहीं होना, गांठें बनना शरीर में, कैंसर तक ये जा सकता है।
क्योंकि इंसुलिन अगर आपका शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड में रहेगा, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ करवाएगा, और वो ग्रोथ कुछ भी हो सकता है, अनइवन ग्रोथ। ठीक है ना, ये चीज आप देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, बहुत हो रहा है। दूसरा, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। शरीर के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्ब नहीं होना, तो ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना बहुत कॉमन हो गया। आप ग्लूकोज का टेस्ट करें, ब्लड में दिखाई देगा। लेकिन इसमें खतरनाक बात यह है कि कैंसर का कोई टेस्ट होता ही नहीं है, ग्लूकोज का ही टेस्ट होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का। तो अगर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन मानवता की खराब हो रही है, तो सबको कैंसर डिक्लेयर किया जा सकता है, कैंसर ना होते हुए भी। ये बहुत खतरनाक बात है। यानी कि ग्लूकोज का अगर एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में बिगड़ा हुआ है, और अगर पेट स्कैन करवाया जाए, तो कहीं ना कहीं आपको कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा, जबकि कैंसर है नहीं आप। और आपको कीमो भी करवा दिया जाएगा, आपको पता नहीं और क्या क्या ट्रीटमेंट भी करवा दिया जाएगा, जबकि कैंसर था ही नहीं आप। और ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, जो बहुत खतरनाक चीज है। तो विसरल फैट जो है, शरीर में चीजों को एब्जॉर्ब, टिश्यू में एब्जॉर्प्शन में, ऐसे मान के चलिए कि जो आपकी कोशिकाओं की खिड़कियां, दरवाजे, रिसेप्टर्स होते हैं, जहां से न्यूट्रिशन उस कोशिका के अंदर जाता है, वो ब्लॉक हो गया, वहां पे फैट जम गया, विसरल फैट होता। तो प्रेशर अगर हम बनाते हैं, तो पहली चीज हम क्या देखते हैं, इंसुलिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बेटर हो जाता। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में इसको रिलेट किया, ग्लूकोज टॉलरेंस, इनटॉलरेंस जिसे हम कहेंगे, वो कम हो जाता है, टॉलरेंस बढ़ जाता है। तो हमने जो वर्ल्ड का फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च वी डिड ऑन रिलेटिंग कुंभक एंड माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ, तो इसमें बहुत ही कमाल के रिजल्ट आए हैं, पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट आए हमारे पास। ओनली कुंभक कैन इंप्रूव द माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। यानी कुंभक से आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, थायराइड ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है। आप बनाते जाइए, रिलेट करते जाइए। अच्छा, हैविंग सेड इट, इतना बोलने के बाद में आपने अपने ऊपर कितना टॉर्चर किया है, ये भी तो डिसाइड करेगा कितनी जल्दी आप ठीक होंगे या नहीं ठीक हो पाएंगे। If the damage in the body has gone beyond a certain threshold, the body will try to close itself down. शरीर अपने आप को बंद करने की स्थिति में आ जाएगा, अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक एग्जाम्पल है। तो प्रेशर इकोसिस्टम जैसे ही ठीक करते हैं, ये जो विसरल फैट है, ये शरीर को इसकी जरूरत नहीं होती, टॉलरेंस बढ़ता जाता है शरीर का। अच्छा, एक और चीज इसमें बोलना जरूरी है, कि जब भी आप कोई रिस्की चीज खाते हैं, केमिकल कोई दवाई खाते हैं, तो आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है, लिवर खराब होता है। कोई भी दवाई, कोई भी केमिकल आपके लिवर को खराब करता है, इन्फ्लेमेशन होता है शरीर के अंदर। इन्फ्लेमेशन, केमिकल खाने से तो ज्वलनशीलता होगी। स्किन पे भी लगा लो केमिकल, स्किन पे लगा लो, जलन होगा ना। फिर घी लगाओगे तो कम हो जाएगा। तो अंदर जलन होगा तो शरीर घी नहीं क्रिएट करेगा, फैट नहीं क्रिएट करेगा, करेगा ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ना। उसी से तो आपको एंटी रिस्क के जितने स्टेरॉइड और हॉर्मोन्स बनेंगे, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, हैप्पी हॉर्मोन्स। आप हैप्पी नहीं है तो फिर हैप्पी हॉर्मोन्स तो बनाएगा ना शरीर। हाँ, डोपामीन, इस तरीके के बायो कॉम्प्लेक्सेस आपका शरीर कैसे बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल से बनाएगा, फैट से बनाता है। तो फैट बढ़ाता है वो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है वो, क्योंकि आप उसको नुकसान कर रहे हैं। वो बेचारा बचा रहा है अपने आप को, आप केमिकल खा के नुकसान कर रहे हैं। योर बॉडी वॉज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल कंजम्पशन। आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, मगर बचपन से आपने इसमें केमिकल डाले हैं।
सबसे मूर्खता वाली चीज तो यही है। एलोपैथी इज द ग्रेटेस्ट क्रिमिनल एक्ट ऑन ह्यूमैनिटी दैट ह्यूमंस हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। पर क्या करें, हमने अपने आप को ड्रग एडिक्ट बना दिया, तो एकदम से तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, छोड़ोगे तो बॉडी क्रैश कर जाए। सभी ड्रग एडिक्ट है ना, हम लोग सब ड्रग एडिक्ट। तो ये एडिक्शन सबसे बड़ा खराब एडिक्शन है पूरे मानवता के लिए। हमें नेचुरल मेडिसिन में रिसर्च बहुत करना पड़ेगा, मगर उससे पहले कुंभक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इससे वात कंट्रोल होता है, रिस्क कम होता है, आपका टॉलरेंस बढ़ता है, झेलने की क्षमता बढ़ती है। जैसे ही टॉलरेंस बढ़ेगा आपका शरीर का, वैसे ही आपका मेटाबॉलिक वीकनेस या इम्यूनिटी का ओवर एक्टिव होना ये कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक वीकनेस ठीक हो जाएगी, तो इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाएगा। ये चीज है। टॉलरेंस बढ़ेगा तो नुकसान कम होगा, साइड इफेक्ट कम होंगे। अगर आप दवाइयां खा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट कम होंगे, शरीर की झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। मगर प्रेशर से ही टेम्परेचर का भी निर्माण होता है। तो जब हम अग्नि बल की बात कर रहे हैं, जिससे कि फैट का कंजम्पशन होता है और रक्त मतलब धातु बल आपका बढ़ता है, तो वो धातु बल प्रेशर से बढ़ता है, यानी कुंभक करने से बढ़ता है। और कुंभक करने से ही अग्नि पैदा होती है। प्रेशर से ही टेम्परेचर पैदा होता है। तो कुंभक करेंगे तो शरीर में गर्मी आती है। ये जितने कुंभक करने वाले हैं सभी का एक्सपीरियंस है, कुंभक करने से शरीर में गर्मी आती है। तो अग्निबल बढ़ेगा, फैट डिजॉल्व होगा, जरूरत नहीं होगी फैट की इतनी, क्योंकि टॉलरेंस बढ़ेगा। वात और पित्त सही होता है। वात से ही पित्त भी सही होता है, ऐसे समझो। इसीलिए वात को सबसे बड़ा रोग का कारक आयुर्वेद में बोलते हैं। किसी भी बीमारी में वात तो खराब होता ही होता। तो वात पित्त, वात से ही पित्त का करेक्शन होता है। वात पित्त प्रेशर टेम्परेचर मिलेंगे तो मटेरियल मैनेजमेंट करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट, श्लेष्म शुद्धि, इसको हम कह रहे हैं। जो आप भोजन करेंगे, कितना भोजन यूज कर रहा है आपका शरीर, वो मटेरियल मैनेजमेंट हुआ। श्लेष्म शुद्धि इसी को कह रहे हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट जितना बढ़ेगा आपके शरीर का, उतना आप देखेंगे फैट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना फैट खाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं कभी। फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जीवन प्राकृतिक जगत में कोलेस्ट्रॉल मिलता ही नहीं है। यानी कि प्लांट किंगडम में कोलेस्ट्रॉल कहीं है ही नहीं बाहर। तो आप अगर वेजिटेरियन हैं और उसके बाद भी तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, तो वो कोलेस्ट्रॉल कहां से आया? वो कोलेस्ट्रॉल घी से नहीं आया, वो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर ने बनाया। और शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है अगर उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। तो शरीर जितना कोलेस्ट्रॉल उसको बनाना होगा उतना वो बनाएगा ही। अगर ये ज्यादा बना रहा है तो रिस्क आपने अपने शरीर में ज्यादा डाला हुआ है, आपका रिस्क बढ़ा हुआ है। रिस्क को कम कर दीजिए, कुंभक कीजिए, कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कम हो जाएगा। उसके बाद जितना मर्जी घी खाओ, आप पतले ही होंगे, मोटे नहीं हो सकते। ठीक है ना? अब मेरा वेट भी 106 107 किलो था किसी टाइम पे, और आज 70 72, बस इतना ही रहता है। जबकि मैं पाव पाव पर घी पी जाता हूँ। घी पीने से कोई मोटा नहीं होता, बल्कि पतला होता है। ठीक है, वो भी गलत ही बोल रहे हैं। अच्छा, पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, आजकल क्या कह रहे हैं? नहीं, आ गई है स्टडी, मालूम है आपको? कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। जो कि हम पहले से ही बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, खराब नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो आप बच गए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो शरीर बच ही नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें सही दिशा में सोचना भी पड़ेगा। तो कुंभक थेरेपी वात पित्त कफ तीनों को सही करने का सबसे पावरफुल तरीका है।
अगर आपको फैट कम करना है अपने शरीर का, तो फैट कम करने की बजाय आपको क्या सोचना है कि अग्नि बल बढ़ाएं, धातु बल बढ़ाएं, अपने बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाएं। कुंभक से स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उससे नुकसान कम होगा, और शरीर को फैट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो नेचुरली कम कर देगा। कुंभक करने वाला इंसान कभी भी मोटा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको सही वेट में आने में समय अलग अलग लगेगा, अलग अलग इंसान। एक कमिटमेंट आप रखिए अपने जीवन में कुंभक की, एक कमिटमेंट सिर्फ, और ये आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, एम्पावर कर देगा। दैट इज फॉर श्योर। बट पहला कमिटमेंट आपको रखना पड़ेगा। कुछ अगर आपको चाहत है, इच्छा है जीवन में, तो उसके लिए आपका क्या कर्म होना चाहिए, वहां पहली शुरुआत तो आपको करनी ही पड़े। हम आपका इंच लॉस तो बहुत जल्दी करवा देंगे, ठीक है। इंच लॉस तो थोड़ी आपको सांत्वना मिल जाएगी, इंच लॉस जल्दी हो जाएगा। थोड़ा वैद्य की गाइडेंस में आपको डाइट भी दे देंगे, ताकि शरीर को नुकसान नहीं हो। मगर कुंभक जब शुरू करेंगे, तो उसमें हम बेसिकली 3 चीजें सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। एक कुंभक थेरेपी का पार्ट होगा, कुंभक थेरेपी। दूसरा पार्ट जो होगा वो हठ कुंभक होगा, सर्वांग हठ कुंभक। इसके अंदर सभी ऑर्गन के रिजुवनेशन का मेथड है। इसमें हम एक फॉर्मूला के तहत कुंभक करवाते हैं, और एक पोजीशन में। तो सर्वांग हठ कुंभक आपके सभी ऑर्गन को रिजुवनेट करने की शक्ति है इसके अंदर, आपके हार्ट को, लिवर को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, किडनी को, और नर्वस सिस्टम को। इसमें एक और चीज हम आपको सिखाएंगे। ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी शेपिंग हो, शरीर में जोर आए, बल आए, आप ताकतवर बन जाएं, और बॉडी की शेप भी अच्छी हो, तो एक पुरातन कला है, इसे करला कटाई कहते हैं। तमिलनाडु में ये आज भी है। इसके अलग अलग फॉर्म, अलग अलग स्पोर्ट्स में भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि करला कटाई का एक फॉर्म, मुदगल, मुदगल से जो पहलवान प्रैक्टिस करते हैं ना, वो भारी भारी लकड़ी का एक बहुत टुकड़ा होता है, गदा, गदा भी होती है। तो इसी में थोड़े वेट के साथ में हल्के से हम आपको कुछ मूवमेंट्स करवाएंगे, बेसिक बहुत बेसिक मूवमेंट, जिससे आपके शरीर के अंदर स्ट्रेंथ आएगा। तो आप किसी भी एज में स्ट्रेंथ को पा सकते हैं, और चाहें तो फिर शरीर को किसी भी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कीजिए। बिस्तर पे पड़ जाना कोई अच्छी बात नहीं। तो आप किसी भी एज के हों, आप अमेदा श्लेष्म में शुद्धि कीजिए, और फिर आप हिमालय घूम के आइए खूब अच्छे से। किसी भी उम्र में आप स्पोर्ट्स की तैयारी भी कर सकते हैं, खेलने की तैयारी भी कर सकते हैं, और शरीर को भी गठीला बना सकते हैं। करला कटाई का एक हिस्सा, 3 हिस्से। एक हिस्सा प्योरली कुंभक थेरेपी है, दूसरा सर्वांग हठ कुंभक है, तीसरा करला कटाई है। ये 3 चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, सभी कर पाएंगे, और इसको हम किसी भी लेवल तक भी ले जा सकते हैं। ये इसमें हम सिखाएंगे। वैद्यों का परामर्श रहेगा, उनकी गाइडेंस रहेगी। चाहे तो आप अपनी बीमारी के लिए उनसे नेचुरल मेडिसिन भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप जितना केमिकल ले रहे हैं उसको कम करते जाएं। विद इन 1 ईयर यू शुड बी एबल टू ड्रॉप एवरी केमिकल फ्रॉम योर लाइफ। दैट इज आवर मिशन। हम चाहते हैं कि मानव जीवन से केमिकल निकल जाए, और तब आपको पहली बार पता चलेगा कि स्वास्थ्य क्या होता है। जब तक आप दवाई खा रहे हैं तब तक कोई स्वास्थ्य नहीं है। आपकी जो एक्सपीरियंस भी है वो भी आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस है। और जब तक प्राकृतिक एक्सपीरियंस, अनुभव आपके जीवन में नहीं आएगा, आपको तृप्ति नहीं मिलने वाली। ठीक है। तो षटकर्म का एक हिस्सा गाइडेड डाइट हो जाएगा। आप चाहें तो औषधि भी अपने जीवन में धीरे धीरे करके लेके आ सकते हैं, और केमिकल से निजात पा सकते हैं। और साथ में कुंभक थेरेपी, जो कि आपको एम्पावर करेगी। वेट मैनेजमेंट ही नहीं,
आप पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है ना, कि एक चीज को एक ही तरीके से देख लिया, फट से उसको कम कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इस तरीके से हेल्थ, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो श्लेष्म शुद्धि, अमेदा श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा, जिसमें षटकर्म हम इंक्लूड कर रहे हैं, और वैद्य के गाइडेंस में हम आपको आगे ले जाएंगे हैंड होल्डिंग करके। आप स्वास्थ्य को निश्चित ही प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारा संकल्प है और हमारी शुभकामना भी है आपके लिए, कि आप स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करें। Thank you so much, Swamiji, for the excellent session. Now we can take up certain questions from the participants. So if there are any questions, we can take it up in the limited time that we have. So there is one question. Okay, there is no question, it's just Bahut Uttam. किसी भी तरीके का सवाल, कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। हाँ, आप लोग एक एक करके हाथ भी उठा सकते हैं. सो वील टेक अप योर क्वेश्चंस वन बाय अनम्यूटिंग यू. We can do it that way also. Okay, Ranjit Kaur, please unmute and ask your question. प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैंने अभी वेट वाला कुंभक खत्म किया है, 6th को ही। एंड मेरे को अचानक ही थोड़ा बाहर गई थी तो ठंड लग गई, तो महासुदर्शन वटी खा रही थी। फीवर बहुत ज्यादा है 3 दिन से, पर इतना ज्यादा है कि मेरे को एलोपैथी लेना पड़ा। घर वालों ने जबरदस्ती दिला दिया क्योंकि बेड से नहीं उठ पा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि जब भी हाँ। वेदर चेंज होता है मेरी इम्यूनिटी थोड़ी लो ही है। हम्म। तो इसके लिए आप गाइड करें कि उस टाइम पे ये कैसे हेल्प करेगा कुंभक हमें। देखिए, पहली बात तो जो आपकी प्रकृति है, आपकी प्रकृति के हिसाब से त्रिभुवन कीर्ति रस लेना चाहिए। तो आप त्रिभुवन कीर्ति रस अगर लेंगे ना, तो उसमें आपको अभी जो है उसमें, क्योंकि आपके शरीर में क्या होता है, गर्मी पैदा करने की क्षमता, अगर हम फंडामेंटल समझ जाए ना, तो हमको ये पता चल जाएगा हम इसको हैंडल कैसे करें। दूसरी बात ये, मैंने जैसे बताया कि हम सभी ड्रग एडिक्ट हैं। ड्रग एडिक्ट एकदम से तो नहीं छोड़ सकता ना। तो जब सपोर्ट लेना हो तो हम मना नहीं कर रहे हैं, आप ले लीजिए। केमिकल का सपोर्ट अगर आपको लगे कि नहीं, और घर वाले क्या बोल रहे हैं उससे बढ़िया आपके शरीर की बात सुने। ठीक है ना, घर वाले बोल के आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। हाँ, चिंता करते हैं हम, तो चिंता तो चीता समान है। अच्छी बात है, मगर चिंता अच्छी बात नहीं है। प्रकृति को समझें, अपने शरीर की प्रकृति को समझें, तो आपको पता चलेगा। गर्मी पैदा करने की क्षमता अगर शरीर में, जठराग्नि कमजोर है, तो क्या होगा इनिशियली, जब आप इसे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे, तो भी इनिशियली आपको मानना चाहिए कि 6 महीने से साल भर तक आपको रेगुलर कुंभक करेंगे, तो ही जाके ये इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। कोई अगर सोच रहा है मुझे आंवला खाने से इम्यूनिटी आ जाएगी, तो नहीं नहीं। इम्यूनिटी बेसिकली आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, किसी भी डिविएशन को रोकने की या फिर उससे हैंडल करने की। तो पहली चीज, शरीर जब गर्म कर रहा है अपने आप को, तो आप उसको एकदम से ठंडा नहीं करना, है ना। फीवर की मेडिसिन भी अगर आपको लेना है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप फीवर हो जाने दो शरीर। उसके बाद अगर आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो उस समय उसको नीचे करेंगे। मगर नीचे करने का नियम क्या है, तरीका क्या है आपके लिए, खास करके कफवात के लोगों के लिए? त्रिभुवन कीर्ति रस, ये अपने पास में रखो। दूसरी बात, आपको भोजन को पचाने के लिए कुछ सपोर्ट ले लेना चाहिए ऐसे टाइम पे। जैसे भोजन से पहले, खाने से पहले आपने थोड़ा त्रिकटु ले लेना, है ना।
एक छोटी चम्मच त्रिकटु ले लिया, उससे क्या है, गर्मी रहेगी शरीर में और जो भोजन आएगा वो अंदर घुसेगा, शरीर के अंदर जाएगा। दूसरी चीज, लहसुन आदि वटी, है ना, लहसुन आदि वटी खाने के बाद में ऐसा 2 गोली ले लीजिए। जितना शरीर गर्म रहेगा, सर्दी जुकाम जब भी हो, उसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है, गर्म पानी चाय की तरह पीना, थोड़ी थोड़ी देर में। शरीर की गर्मी को कम करने की बजाय शरीर की गर्मी को बढ़ाएं। हम उल्टा करते हैं ना, हम उल्टा करने लग जाते हैं। तो शरीर की गर्मी को बढ़ाएं, यानी कि गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में चाय की तरह सिप सिप करके पिए, है ना। और गर्म चीज क्या होती है ऐसे टाइम पे, अच्छा क्या रहेगा, शहद। शहद, शहद का इस्तेमाल करें, किसके साथ में, काली मिर्च। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में मिर्च एक्चुअली में एक तरीके का इलाज भी है, मगर काली मिर्च अच्छा होता है तो काली मिर्च और शहद मुंह में लेके चबाएंगे, है ना, दिन में 4-5 बार ऐसा कर लेंगे। तो क्या होगा कि जो भी शरीर के अंदर कफ बन रहा है वो बाहर जल्दी निकलेगा। गर्म पानी पीने से भी कफ बाहर निकलता है तो आराम रहेगा। सांस की तकलीफ लेने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है तो वो नहीं आएगी, है ना। शरीर को गर्म रखना, और उसके अंदर भेदन, नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसको कि आपको लेना चाहिए। नमक पानी भी पी सकते हैं, या फिर नमक और घी लगा के, अगर चेस्ट में ज्यादा कंजेशन है तो नमक घी का थोड़ा लेप वहां पे मालिश करेंगे, पीठ की तरफ में भी मालिश कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ चीजें लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। मगर ये अभी प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी जुकाम कोई बीमारी नहीं होती, वायरल कोई बीमारी नहीं होती, ये मान के चलिए। इम्यूनिटी कम होने की वजह से तकलीफ आ रही है, या इसको लड़ रहे हैं हम तो तकलीफ आ रही है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कुंभक करते करते 1 आध साल के अंदर ये आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग इनटू फ्लू वो कम हो जाएगा, और कुछ समय में बदल खत्म हो जाएगा। मेरे साथ में बहुत होता था, फ्लू बहुत होता था मुझे। और आज के टाइम पे कोई वायरल किसी को है भी, उसके साथ भी अगर मैं हूं तो भी मुझे नहीं होता, और होगा भी तो अंदर से ही वो हल्का सा पता चलता है, ठीक हो जाता है। कुंभक से ये फायदा है, आगे चल के ये आपका फ्रीक्वेंटली होने वाले ऐसे फ्लूज खत्म हो जाएंगे। कुछ ही साल के अंदर आप देखेंगे आपको फ्लू या फिर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, एक और चीज है, Okay. लहसुन आदि वटी बोला, एक और चीज कर सकते हैं, चित्रक आदि वटी भी ले सकते हैं। चूसने वाला होता है, खाने के बाद में थोड़ा चूसें। हाँ जी, कोई और। ये स्वामी जी प्रणाम। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, मैंने ये कुंभक अपना वेट मैनेजमेंट वाला किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे हमारे एनर्जी काफ़ी अच्छी बूस्ट हो गई। लेकिन लास्ट 2 महीने में क्या है कि वो 20 अक्टूबर के टाइम में एक फीवर आया था। फिर दोबारा से अभी एक लास्ट सेशन था वेडनेसडे को, तो फीवर आ गया था, तो 1 हफ्ते का ब्रेक हो गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो बॉडी का हीट कुंभक से बढ़ गया है, वो वाला फीवर है या दूसरा नेचुरल फीवर है। तो समझ नहीं आ रहा था, और मुझे कफ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे एसगार्ड जूस या कुछ भी, ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये 2 महीने से मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, कफ का हो रहा है। तो इसके हाँ, लिए थोड़ा सा प्लीज हेल्प कर दीजिए मुझे। कफ और शरीर में जब भी बनेगा तो मेरा शरीर जो गर्म हो। कोलेस्ट्रॉल, हाँ हाँ, हम्म। सॉरी सॉरी, कोलेस्ट्रॉल, क्या कोलेस्ट्रॉल। मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है हमेशा हाई रहता था, लेकिन अभी मेरा 166 हो गया, मतलब एकदम नॉर्मल हो गया 1 महीने हाँ में हाँ ही। हाँ हाँ, वो हो ही जाता है नॉर्मल। मैं जो बता रहा हूँ, कफ जब भी शरीर के अंदर बनेगा, कभी भी आप ये समझिए कि जो रिकवरी होती है या शरीर का हेल्दी होना होता है वो एक लाइन में नहीं होता। यस। दुनिया में कोई भी चीज लाइन में नहीं चलती, सब हम्म। हमेशा साइकिल में चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से होगा ही। तो कफ जब भी बढ़ता है शरीर के अंदर, और वो मौसम चेंज होने की वजह से भी होता है, तो हम्म। आपका शरीर हमेशा अपने आप को गर्म करेगा।
कुंभक जो आपको गर्म करेगा ना, अगर कुंभक से आपके शरीर को आप गर्म करेंगे तो शरीर ठंडा करेगा रादर। हम्म। दोनों में बहुत फर्क है। जब कुंभक से आप का शरीर गर्म होगा तो शरीर इसको फिर ठंडा करेगा। लेकिन अगर कफ बढ़ा है तो शरीर गर्म करेगा अपने आप को, फीवर आएगा। फीवर आना एक अलग बात होती है। हम्म। तो फीवर क्यों आ रहा है? क्योंकि उस कफ को पिघलाना है, उस कफ को निकालना है, यूटिलाइज करना है, या फिर उसे निकालना है। तो शरीर गर्म हो, गर्म शरीर में ही कफ निकलता है। शरीर ठंडा हो जाएगा तो कफ जम जाएगा। सीधा सीधा नियम करो तो, इसलिए शरीर अपना नुकसान तो नहीं करने वाला, वो फीवर करेगा। फीवर गलत नहीं है, पहली अच्छा। बात। लेकिन ज्यादा होने पे अगर हमको तकलीफ आती है तो नेचुरली इसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। बस वहां पे ही है। आइडियली तो आपको अपने शरीर को गर्म करना चाहिए, ठंडा नहीं हम्म। करना। ठंडा तो उसी स्टेज में करें जब तकलीफ ज्यादा बढ़ गई, उस समय थोड़ा ठंडा करें, ताकि वो गर्मी बिल्कुल ही नीचे ना हो जाए। तो अभी कफ आ गया, आप नहीं कर पा रहे, ऐश गॉड जूस तो वैसे भी नहीं आपको पीना चाहिए ऐसे ठंड में, यस। है ना। जैसे मैंने अभी बताया, पहले भी बताया क्या क्या करना है। हम्म। तो शरीर को गर्म करना है, यानी गर्म पानी सिप सिप करके पीना है, थोड़ी थोड़ी देर में पिए। शहद, काली मिर्च का उपयोग, है ना। यस। त्रिभुवन कीर्ति रस, ये सभी कफ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे फैट वेट लूज वाले में, वो ज्यादातर लोग कफवात के ही लोग होंगे। हम्म। तो उनको अगर फीवर आए तो क्या लेना चाहिए? त्रिभुवन कीर्ति रस घर में ये रखना चाहिए, कि अगर बीच में कभी आया ऐसा तो 2 गोली 2 गोली 2 गोली ऐसे करके दिन में 2 बार से मैक्सिमम 3 बार तक ले सकते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस। मगर ये ओ, लंबे समय तक नहीं लेना इसको, है ना। हमेशा शॉर्ट पीरियड के ले लें, 1 2 3 दिन, ज्यादा इतना ही जरूरी होता है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं होता। ओके। त्रिकटु का इस्तेमाल जैसे बताया, चित्रक आदि वटी, लहसुन आदि वटी खाने के बाद में, इससे आपके शरीर में गर्मी बनी रहेगी। गरम मसालों का उपयोग करें जिनकी तासीर गर्म है। ठंडा चीज कुछ भी आपको नहीं लेना, गर्म चीज ही लेनी है। ताजा बना भोजन, गर्म भोजन ही लें। रखा हुआ भोजन नहीं लेना, है ना। फ्रिज में रख दिया, सुबह सब्जी बनाई रख दिया, रात को गर्म करके खा लेंगे, नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, है ना। आप समझिए, जीवन का सबसे बड़ा लग्जरी ना भोजन होता है, सही बात। ठीक है। तो वो अच्छा भोजन मिले, ये सबसे बड़ा लग्जरी है। ताजा भोजन, अच्छा भोजन अगर बच गया तो बहुत जीव जंतु होते हैं, उनको भी मौका दें कि वो भी थोड़ा खा लें, है ना। सही बात। हर चीज, हर तरीके का कचरा मानव को अपने शरीर में, देखिए लालच होता है कि नहीं जी, भोजन कभी भी वेस्ट नहीं होता, ये भी समझो। आपने हम्म। भोजन के पहाड़ कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, यस। कोई ना कोई तो उसको खाता है। यस। पर मानव का, ह्यूमन का लालच क्या है? नहीं, सब कुछ मुझे ही खाना है ये लालच है। तो ताजा हम्म। भोजन करें, उतना ही भोजन बनाएं जितना आप कंज्यूम कर लें, या जो बचेगा वो जानवरों को या पशु पक्षियों को दे दें। हम्म। कफवात के लोगों को हमेशा गर्म ही खाना चाहिए, ओके। हम्म। है ना। ये कुछ सपोर्ट लेंगे तो आपको मिल जाएगा, मगर कुंभक जितना भी आराम से हो सके आप करने की कोशिश करो। सभी कुछ यस। नहीं भी हो पा रहा तो कम से कम थेरेपी वाला पार्ट, है ना, वो वाला पार्ट तो हो ही जाएगा। अगर आप हठ कुंभक नहीं कर पा रहे या करला कटाई वाला पार्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं सारा कर रहा हूँ सर। पूरा कंप्लीट करता हूँ, एक सेट पूरा दक्षिण वाला मुझे मिला है, तो मैं हम्म। पूरा करता हूँ। हाँ, तो और कस्टमाइज तो कर ही सकते हैं। दक्षिण बल जैसे मिला है तो हर घंटे एक राउंड तो किया ही जा सकता है। हाँ, हाँ, वो वो तो करेंगे कर तो, रहा हूँ। हाँ वो करेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस पे ये कोई ज़्यादा चिंता वाला विषय नहीं है। बीच बीच में शरीर क्योंकि काफ़ी कमज़ोर था तो उसको ताकत भी आएगी, तो थोड़ी हम्म। मौसम के साथ दिक्कत भी आएगी, मगर धीरे धीरे करके देखेंगे ये दिक्कतें बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके शरीर का बल बढ़ेगा ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, चिंता का विषय ये नहीं है। आराम रखिए, शरीर को कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देना, ये ध्यान रखिए। जब भी आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होना, विरेचन गुलिका रखो, है ना। ऐसा कुछ त्रिफला, हाँ। हरित की, है ना, ऐसा यस। कुछ भी आपको जो जिससे पेट साफ हो। पेट रेगुलर साफ होना चाहिए, खास करके जब शरीर में फीवर आया हो, ऐसे केस में आपको कुछ ना कुछ ऐसा लेना ही चाहिए।
है ना, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है कोई, बहुत ज्यादा, तो इच्छा भेदी रस रखें घर में, वो 1-2 दिन ऐसा देंगे। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, एक चीज और पूछ सकता हूँ? हाँ, बोलो बोलो। जैसे मुझे पहले कुछ 3-4 साल पहले ना स्लिप डिस्क का इशू था साइटिका का। तो मैंने वो काफी हद तक अपने मतलब मेडिटेशन करके और ध्यान कर करके ना काफी अच्छा हील कर लिया। अब मतलब 1-2% थोड़ा सा पेन है हल्का सा। और मैं अब काफी से पहले मतलब बैठ भी नहीं पाता था, अभी मैं बैठ सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, सब कर लेता हूँ आराम से, बढ़िया से। तो 1-2% रह गया था, तो मैं सोच रहा था कि जैसे आपका जो दूसरा एक न्यूरो मस्कुलर वाला जो कोर्स था, तो वो मुझे लेना चाहिए, या मैं ये जो दक्षिण बल्वा कुंभक है इसी को करूं, इसी से मेरा अच्छा हो जाएगा? क्या करना चाहिए देखो, मुझे? हाँ, देखो, ज्यादा चांसेस हैं कि इसी से अच्छा हो जाएगा, मगर आपको दूसरा भी करना है तो पहले 6 महीने अच्छा। पूरा प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही कुछ दूसरा करना। अच्छा ठीक है ना। हम्म, ठीक है। हम्म। वो तो ये मैं अब मेरा मतलब पार्ट ऑफ लाइफ मैंने इसको बना लिया है अभी अब। हाँ हाँ, बिल्कुल, और इसको बनाने पे ही आप देखेंगे आगे आपको पूरी लाइफ ठीक। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हाँ। प्रणाम, थैंक यू। हाँ जी, वैशाली जी बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। ना। मैंने 1 साल पहले थायराइड का प्रोग्राम किया था। तो थायराइड है मेरा नॉर्मल हो गया, बट मेरा वेट बढ़ गया है, तो मैंने वेट मैनेजमेंट का किया। अराउंड हम्म 5 kg वेट बढ़ गया था। तो जस्ट हम्म। कंप्लीट किया वेट मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम। तो अभी मैं दोनों करना है मुझे, थायराइड का भी प्रोग्राम का जो दिया है कस्टमाइज वो भी, और वेट मैनेजमेंट का भी कस्टमाइज, दोनों मुझे साथ में करना होगा। नहीं 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 नहीं, दोनों नहीं करना होगा, केवल वेट मैनेजमेंट का ही करना होगा। जब आप जो प्रोग्राम इस वक्त में आपने किया ना, हम्म। सबसे लास्ट में वही प्रोग्राम का कस्टमाइजेशन करना है। ओके, एक तो ही उससे करना मेरा है। थायराइड भी बैलेंस रहेगा हाँ एंड हाँ, वेट थायराइड, मैनेजमेंट। थायराइड वायराइड आपको देखो हो गया है ना, ठीक, अब कुछ नहीं होने वाला थायराइड का, चिंता मत। ओके। एंड हम्म। सेकंड थिंग, क्या मैं इसके साथ में, मुझे बैक एक तो है, तो मैं वो जट कमर पट्टा बांध के हट्टा कुंभक कर लेती हूँ। तो मैं सूर्य नमस्कार साथ में कर सकती हूँ या फिर से बैक एक हो जाएगा? सूर्य नमस्कार से बैक होने के चांस होते हैं, लेकिन अगर आप स्लो करोगे, जितना स्लो करोगे उतना आपको फायदा होगा। तेज करोगे ओके। तो नुकसान होगा, स्लो करोगे, जितना धीरे करोगे उतना फायदा। तो नंबर पे ना जाए, सूर्य नमस्कार मुझे 12 राउंड करने हैं, 24 राउंड करने हैं, 108, ऐसा कुछ नहीं करना। आप एक राउंड ही करो, बहुत स्लो करो, आधे घंटे में करो। अच्छा, ओके। जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा है। थैंक्स। Yes, Nayana ma'am. जी जी। नमस्ते सर। नमस्ते स्वामी जी। मैंने नमस्ते नमस्ते। 1.5 साल पहले अष्टांग चिकित्सा का कोर्स किया था और मैं बहुत रेगुलरली उसको कर रही हूँ। काफी कुछ चीजों में मुझे फायदा है, लेकिन मैं ये कह सकते हैं आप 70% तो मैं ठीक हूँ। तो मुझे क्या ये श्लेष्मा शुद्धि वाला भी और कर लेना चाहिए? क्योंकि मेरा कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे विक्टो पेन है, कभी कभी कमर में दर्द है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है अच्छे से। देखो, उम्र के साथ साथ एनर्जी भी कम होती है। जी उम्र के साथ साथ आप देखेंगे, आप जी। एक एक हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है कि हम वापस से जवान बन जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। सही बात है। ठीक है ना, तो अभी क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। जी। जैसे हम, अगर आपको कोई काउंटिंग दी गई है, मान के चलिए आपको काउंटिंग दी गई है 4, 16, 8, ऐसे हम्म। काउंटिंग दी गई है, तो 4 आप 1, 2, 3, 4 भी काउंट कर सकते हैं, या फिर 1, 2, 3, 4 भी काउंट कर और सकते या हैं, है ना। जैसे ही आपने स्लो कर दिया उसको, वैसे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। यस। अब आप नेक्स्ट पारे पे, नेक्स्ट पायदान पे आ गए। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। 45 एंड अबव, 45 से ऊपर जितने लोग हैं, उनको कोई भी एक्शन ना स्लो करना चाहिए। सही। ठीक है। 25 से ऊपर, 25 से 45 तक, 25 से 45 तक वाले जो हैं, वो एक्शन को मीडियम फास्ट। पेस पे, मीडियम पेस पे कर सकते हैं। और 25 ओके। से कम वाले जो हैं वो विगरस पेस पे कर सकते हैं।
ओके। जैसे जैसे आपको नेचुरली भी ऐसा देखने को मिलेगा कि बच्चे जो एक्शन करते हैं ना, वो बहुत ही तेजी वाला और थोड़ा अनकंट्रोल्ड एक्शन होता है, तो उनको हेल्प करता है। जवान जितने भी मैच्योर होने लग जाएं तो उनको बल के साथ एक्शन करना चाहिए, मगर मीडियम पेस पे बल के साथ करना चाहिए, मगर मीडियम। छोटे बच्चों का ना कंट्रोल नहीं होता, मगर जैसे ही राइट। जवान होंगे तो कंट्रोल के साथ और थोड़ा इंटेंसिटी के साथ में रहे, मीडियम पेस पे रहे तो वो ठीक रहता है। मगर 45 के बाद में कोई भी एक्शन स्लो पेस पे करने से फायदा होता है। ओके। तो जब अष्टांग चिकित्सा आपने सीखा और कुछ समय तक प्रैक्टिस किया, तो उसके बाद अब मैं आपको क्या अभी करना है, उसको स्लो बनाना है। ओके, लगातार कर रही जितना हूँ मैं 1.5 साल से। हाँ, जी। जितना स्लो करेंगे ना उतना आपको फायदा होगा। अच्छा, क्योंकि ठीक है, मुझे तो गैसेस का प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है, बाकी तो बहुत सारी चीजें ठीक है, लेकिन थोड़ा भी कुछ खा लेती हूँ तो गैसेस बहुत जल्दी हो जाती वो उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा, वैद्य का आप परामर्श ले लें। है। देखिए, जी। आपका गट गट माइक्रोबायोटा यानी प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक कुछ आप लेंगे, जी। और फर्मेंटेड चीज बीच में खाएंगे, है ना। ओके। जैसे कि हमारे कल्चर में ही था अचार का सेवन, कंजी का सेवन। अभी काली गाजर की कंजी आ रही है जी। ना, जी। तो वो कंजी का सेवन करें, थोड़ा प्रीबायोटिक प्रोसबायोटिक प्रोबायोटिक लें, और लिवर को सपोर्ट करें, लिवर को ओके। रिजुविनेट। ये करने से आपका वो गैस का प्रॉब्लम जाएगा। गैस का मतलब हो रहा है पच नहीं रहा, गट माइक्रोबायोटा जी। यानी कि जो जी। जी। जीवाणु हैं, पेट में जो जीवाणु हैं वो कम हो गए हैं। कम हो गए हैं। हाँ, क्योंकि उससे मैं आपको फर्मेंटेड चीजें तो इसलिए नहीं खाती कि जल्दी से कफ या गला खराब ना हो जाए, या इस थोड़ा, वजह से देखिए, मैं। क्वांटिटी आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, थोड़ा, सही बात। हाँ, निषेध नहीं होना चाहिए, लेकिन हम्म। रेगुलेशन थोड़ा लें। किस टाइम पे लें, थोड़ा लें, ऐसे टाइम पे लें जब अच्छा हाजमा अच्छा हो। दिन के टाइम पे अगर आप कुछ फर्मेंटेड लेंगे तो जी। कोई जी। प्रॉब्लम नहीं आएगी, रात को लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आएगी। ओके। तो है मुझे ना। फिर ये श्लेष्मा शुद्धि वाला करना चाहिए, या मैं अष्टांग चिकित्सा को ही अभी कंटिन्यू आप करूँ? अष्टांग ही करें, उसको थोड़ा स्लो बनाएं, जी। और 6 महीना और अष्टांग करें स्लो करके। उसके बाद जी। देखें कि क्या बचा हुआ है आपके शरीर में, और कोई प्रॉब्लम बची हुई है तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये अमेदा कर लें। बाकी एनर्जी लेवल तो मेरा पहले से बहुत बढ़ गया, जैसे सर्दी हाँ, वगैरह भी होती है, कोई दवाई नहीं लेती, अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ, ये तो वो सबके तो। साथ ही जो भी कुंभक करेगा धीरे धीरे करके ये सबके साथ होगा ही। जी। ठीक ठीक, ओके स्वामी जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका नमस्कार, बहुत नमस्कार। बहुत। हाँ, रितु जी कुछ पूछ रहे हैं? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, सबसे प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी सारी टीम का। इतना अच्छा कुंभक प्रोग्राम किया है हमने। अमेदा वाला मैंने किया था अभी जो 25 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मुझे बैक पेन बहुत रहती थी और मैं बैठ भी नहीं पाती थी। अब मैं काफी देर तक बैठ पाती हूँ, तो थैंक यू सो मच। एक इशू मेरे को अभी भी है थोड़ा सा, जो ट्रबल करता है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, तो उसमें आप थोड़ा गाइड कर दें। एक तो मुझे भी यही प्रॉब्लम है और मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, इवन दे आर, उनके तो बल्कि ज्यादा ही प्रॉब्लम है, विंटर्स में इंक्रीज हो गई, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप गाइड करेंगे? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो बड़ी कॉमन चीज हो गई है। ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि न्यूरो वीकनेस, नर्व का वीकनेस भी आता है, हम लोग को हो रहा है, जो ह्यूमैनिटी को हो रहा है उसमें। और एज के साथ साथ थोड़ा ये ज्यादा होता भी है। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको गहन रूप में तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, मगर वो कितना कर पाएंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा। उदान वायु अगर हम अपने शरीर का बढ़ा दे तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाता है। उदान वायु लेकिन कैसे बढ़ाएंगे? उम्र के साथ साथ में उदान वायु थोड़ी बढ़ानी भी चाहिए। प्रैक्टिकल मैं कुंभक इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि उदान वायु का और भी चीज़ों के साथ में जुड़ाव होता है। जीवन से इच्छा ही खत्म हो जाए वो भी नहीं चाहिए। तो लेकिन एक चीज आप मान के चलिए कि हम्म, अगर शरीर में थोड़ी शीतलता, कुंभक के बाद में अगर आप थोड़ा शीतकारी कर लें, 1-2 राउंड शीतकारी कर लें, सोम दोष के लिए कुछ सपोर्ट ले लें। सोमेश्वर रस हो गया, या फिर
बहुमूत्रांतक रस होता है, एक आता है बहुमूत्रांतक रस, ये थोड़ा सपोर्ट के लिए ले सकते हैं। एक प्रैक्टिस जो मैं आपको सिखा सकता हूँ वो है, इसे कहते हैं आ, आ, आपको हमने मूल बंध दिया है ना, मूल बंध दिया है। मूल बंध को अगर बार बार करेंगे तो इसे अश्विनी क्रिया कहते हैं। यानी कि एनल स्पिंक्टर मसल्स जो हैं, मल द्वार जो है उसको टाइट करना है, ढीला करना है, टाइट करना है, ढीला करना है, टाइट करना है, ढीला करना है। ऐसा धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करिए। एक दिन में जैसे 100 बार कर लिया, उसके बाद में इसे 200 तक ले जा सकते हैं। इससे इनिशियली क्या होगा, थोड़ा इनकॉन्टिनेंस थोड़ा सा बढ़ के फिर रुकना शुरू हो जाएगा। शरीर में गर्मी, जठराग्नि तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। मगर शरीर की गर्मी ज्यादा बढ़ के, इसलिए मैंने कहा कुंभक करना ही पड़ेगा। कुंभक करने के बाद में शीतकारी करो तो बैलेंस आउट होता है। एक राउंड से शीतकारी को 21 टाइम्स करना होता है। तो कुंभक जब भी करें तो शीतकारी करें, एक राउंड शीतकारी करें तो थोड़ी देर बाद दूसरा राउंड भी कर सकते हैं। तो 2-3 राउंड अगर दिन में आप कर लें उससे फायदा होगा। अश्विनी क्रिया एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और जैसे बहुमूत्र तक रस कुछ समय तक ले लें, बहुत लंबे समय तक नहीं लेना, जैसे 3 हफ्ते मैक्सिमम आप ले सकते हैं। 2 गोली रात में ले लें भोजन के बाद में। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 3 हफ्ते ले सकते हैं। उसके बाद में आपको गैप देना है 3-4 महीने का, फिर आप 3 हफ्ते ऐसे करके ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज जो हमको समझनी है वो ये है कि इनकॉन्टिनेंस का एक और कारण होता है जब शरीर अपने आप को छोड़ देता है। शरीर छोड़ने की प्रवृत्ति में जब आता है तो इनकॉन्टिनेंस आएगी। आप जितना भी तत्वों के साथ में जुड़ेंगे, यानी नंगे पांव, कुछ समय नंगे पांव तो रहें, कोई एक दिन हफ्ते में निकाल रहे हैं जब आप नंगे पांव रहें, जमीन पे नंगे पांव जब भी मौका मिले आप बाहर जाके चलें, है ना। नंगे पांव जितना भी आप, या तो फिर एक पावर मैट, एक एक्यूप्रेशर का मैट भी आता है ना, कांटे कांटे निकले होते हैं, वो घर पे रखते हैं, बीच बीच में उसके ऊपर थोड़ा चलना है। पांव के तलवों में जितना भी वो पृथ्वी के साथ में जुड़ा रहेगा, ये इनकॉन्टिनेंस में आपको सपोर्ट मिलेगा, है ना। कुछ वैद्य के परामर्श से भी आप कुछ चीजें अब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला कोई औषधि ले सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। तो एक और चीज जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो भी मैं बता देता हूँ। इनकॉन्टिनेंस जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो बीच बीच में ऊपर नीचे होता है। लेकिन हम अगर कोई केमिकल मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं तो इनकॉन्टिनेंस परमानेंट हो जाता है। न्यूरोपैथी तक भी कभी भी आपके शरीर में परमानेंट नहीं होता, ये ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन ये ऊपर नीचे शरीर इसको ठीक करे, उसको ठीक करने में बाधा क्या होती है, कोई भी दवाई, केमिकल दवाई। अगर आप केमिकल दवाई नहीं ले रहे तो आप देखेंगे इनकॉन्टिनेंस में सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप केमिकल दवाई ले रहे हैं तो इनकॉन्टिनेंस में आप कुछ भी करेंगे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं आपको एक चीज कहता हूं कि आप 1 साल के अंदर अपनी सारी केमिकल दवाई छोड़ने की कोशिश करें, शिफ्ट कर जाएं नेचुरल पे धीरे धीरे करके। तो देखेंगे कि ये इनकॉन्टिनेंस वाला भी शरीर जो है धीरे धीरे करके इसको ठीक कर लेता है। हाँ, आप सोचेंगे वो उस तरीके की स्थिति आ जाए जैसे जवानी में थी, तो वो ऐसा ना सोचें, क्योंकि उम्र के साथ साथ में थोड़ी बहुत इधर उधर प्रॉब्लम रहती है। मगर वो प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम देखने की बजाय ग्रेसफुली उसमें आगे जाने की कोशिश करें, है ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी हम सोच रहे हैं कि निकल जानी चाहिए, दुनिया में से कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं निकल, है ना। किसी की डायबिटीज ठीक नहीं हो रही, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा, किसी का थायराइड ठीक नहीं हो रहा, किसी का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं हो रहा। और हम छोटी छोटी चीजों की तरफ में ध्यान देते हैं कि ये भी चीज ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। थोड़ा इनकॉन्टिनेंस अगर उम्र के साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डायपर लगाने की जरूरत आ जाए तो समझिए कि हमने अपना शरीर पूरा ही बिगाड़ दिया। मगर आजकल यही हो रहा है ना, डायपर लगाने की स्थिति में नहीं आना हमको बिल्कुल भी। तो इसीलिए दवाइयां हटा के शरीर को थोड़ा बल देंगे
तो इसमें बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे और अच्छा, अच्छा, ऐसे तो क्वेश्चन चलते जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। जाना भी और भी है, काम है। तो देखिए, काशी में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके जीवन में आप कितना भी इलाज करा लें, पर जो असली इलाज क्या होता है, वो जीवन का इलाज ही असली इलाज होता है। काशी में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सभी आइए, सभी को इनविटेशन। और हक के साथ बोलूं तो ऐसा हम वहां पे कुछ करने वाले हैं जो बहुत कम मौका मिलेगा। हम्म। तो जीवन में पर्पस बना के रखना है। विश्वनाथ की ऊर्जा के साथ में अगर आपको मैं जोड़ूंगा, तो सोचिए कि आपका जीवन कितना पूर्ण होगा। तो काशी में आइए, सभी को आना है, सभी आइए। और उसके लिए हम प्रैक्टिसेस देंगे कुछ, है ना, मंत्र उपाचरण देंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिसेस वहां पे देंगे, ताकि और वो जीवन भर की कुछ चीजें होंगी जो आपको आपके आ, मतलब विश्वनाथ के साथ में जोड़ने के बाद में ही वो प्राप्त होगा। सीमा जी, बोलिए 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 बोलिए, बहुत उतावले हो रहे हैं। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ। सर, हाँ, नमस्ते सर जी। आपसे मैं हाँ। बहुत समय से बात करना चाहती हूँ, 1.5-2 साल से आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। सर, मैंने बताइए। 2023 में मस्कुलोस्केलेटन प्रोग्राम आपका पूरा ज्वाइन किया था। मेरे बैक में बहुत बल्जिंग आ गई थी लंबर रीजन में, तो डॉक्टर्स ने तो ऑपरेशन बता दिया था, ठीक ही नहीं हो सकता। खैर, मैंने आपका प्रोग्राम किया और मुझे बहुत आराम है। पता नहीं हम्म। बल्जिंग ठीक हुई या नहीं हुई, मगर मुझे आराम है बहुत। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और सर, मैंने अभी 4 महीने पहले आपका अमेदा श्लेष्मा का प्रोग्राम किया। सर, उससे भी मेरा वेट 3 kg कम हुआ। अब मुझे पता हम्म। नहीं, पता तो चल नहीं पाता क्या ठीक हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर मुझे आराम है। अंदर से मेरी सेल्स कितनी ठीक हो पा रही हैं ये मुझे नहीं, मैं समझ पा रही। पर सर, मुझे एक सीवियर प्रॉब्लम है जो मैंने दोनों में आपकी मेंशन करी थी, जो फॉर्म भराते हैं। सर, मुझे हम्म। सीवियर इंसोम्निया है। मुझे बिना हाँ। गोली में सो ही नहीं पाती। डॉक्टर्स ने ठीक। लिखा है कि अगर आप नहीं सोएंगे आप बीमार पड़ जाएंगी, सोना बहुत जरूरी है। मगर मैं हम्म। बिल्कुल, ना दिन में नींद आती थी ना रात में। तो मुझे झक मार के मुझे गोली खानी ही पड़ती है। मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, नींद ही नहीं आती मुझे। मैंने योग निद्रा में ट्राई किया, किसी ने गायत्री मंत्र बताया, कुछ बताया, मुझ पे किसी चीज का असर नहीं है सर। अच्छा, आपको सीवियर इंसोम। गायत्री, हाँ हाँ, गायत्री मंत्र है ना, याद है गायत्री मंत्र? हाँ जी सर वो तो अब आता है। हाँ, अब एक काम करना, जी। है ना, सांसों के साथ में गायत्री मंत्र करना, यानी इनहलेशन जैसे कर रहे हैं ना, मन में गायत्री मंत्र बोलना, जोर से मुंह से बोलना नहीं, मन लेकिन में। लंबा। हाँ, मन में बोलना है, एक इनहलेशन के साथ में एक गायत्री मंत्र, एक्सलेशन ओके। के साथ में एक गायत्री मंत्र। इनहलेशन के साथ में एक गायत्री मंत्र मन में बोलें, एक्सलेशन के साथ में एक गायत्री मंत्र मन में बोलें। ऐसे 54 बार कर दो, 54 टाइम्स, इनहलेशन एक्सलेशन मिला के 108। अच्छा सर। अच्छा, ये एक सौ जरूर। आठ बारी आप एक बार प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, संध्या सर, के एट द टाइम। बेड टाइम, नींद में, मतलब लेटते समय बेड नहीं टाइम में नहीं ये नहीं नहीं करूँ? नहीं 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 नहीं, बेड टाइम में करेंगे तो नींद उड़ जाएगी। शाम को संध्या अच्छा। के टाइम पे, संध्या के टाइम पे एक ज्योत जलाएं, अच्छा सर। है ना, वहीं बैठ के, मंदिर है अगर तो वहीं पे ज्योत जी जला के बिल्कुल। वहीं बैठ के एक सौ अच्छा। आठ बार ऐसा कर लें। मान, सांसों की माला करनी है आपको। ठीक है सर। ठीक है ना, सांसों की माला करेंगे, कुछ समय बाद में नींद आने लग जाएगी। ठीक है सर, और एक चीज, इन दोनों में से मुझे कौन सा कंटिन्यू रखना है, मस्कुलोस्केलेटल या मेदा श्लेष्मा? वो अभी मेंटर ने तो अमेदा, बताया अल्टरनेट कीजिए, एक दिन ये कीजिए, एक दिन ये कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अमेदा करो, अमेदा। लास्ट टाइम जो अमेदा किया था ना, हाँ जी, तो 4 मंथ्स पहले मैंने हाँ, ये 4 मंथ्स किया है। पहले किया था, तो अमेदा ही करना है आपको। और दूसरा, आपको कुछ एक सपोर्ट भी ले लीजिए। जी। मनस मित्र वटी आती है। मनस मित्र वटी। हम्म। एक क्या और है सर? उसी उसी का ही एक वर्जन है हमारे पास में, हमारे से मिल जाएगा, मनमीत नाम से, मनमीत। ये गोलियां हैं। मनमीत। हाँ, मनमीत टैबलेट्स हैं ये। इसको रोज रात में 2 गोली लेना है, और इसे कम से कम 3 से 4 महीने तक लगातार लेना है।
ठीक है सर। ठीक है ना? तो मनमीत ले लीजिए, जी और ये जो सांसों की माला बताई ये करिए। जरूर। तो सर ये मुझे मिल जाएगी, मैं मतलब अपने हाँ ग्रुप हाँ, में मिल जाएगी, डालूं? हाँ, ग्रुप में पोस्ट कर दिए, मुझे बता लिंक मिल दीजिएगा। जाए, मुझे लिंक मिल जाए इसका, मनमीत में मंगा सकूं? हाँ हाँ, लिंक मिल जाएगा आपको। अपने मेंटर ठीक को है। बोल दीजिए, वो लिंक आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है सर। है मनमीत ना? गोली, तो सर पूरा ये पैकेट होता है या बॉटल है, क्या हाँ है, मैं पूरी हाँ मंगा हाँ, दूं? ये बॉटल है, ये बॉटल है। तो इसके अंदर कैप्सूल्स होंगे, तो 2 कैप्सूल ओके। आपको रात में लेके धीरे धीरे करके छोटे देखेंगे, वाले। हाँ, 1 आध महीने में ही ये ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक और है, वो मस्कुलोस्केलेटल मुझे वो कुंभक नहीं करना? वो नहीं करना, केवल अमेदा वाला करो, और इसमें जो कस्टमाइज दिया हुआ है वो भी करिए, हर घंटे में या हर 1 आध घंटे में, जब भी याद आए तो वो करना। जरूर। ठीक है। थैंक यू सर जी, बहुत मुझे आज शांति पड़ी आपसे बात करके। मैं चाह रही थी, मैं आपसे कांटेक्ट, वो लोग कराते ही नहीं थे, वो कहते हैं आप बात ही नहीं करते किसी से। मैं चाहती नहीं, थी आपसे पर्सनली ये चीज डिस्कस करनी कि मेरी मुझे आवाज आराम है आ रही। हाँ, आवाज तो निकलती है, देखो बोल रहा हूँ इतनी देर से, तो बात तो कर ही हाँ जी सकता सर। हूँ। जरूर, मतलब वो तो काशी करवाया आओ, नहीं मेरे काशी आओ, सबके साथ में बात करूंगा, सबसे मिलूंगा। अभी भी बैंगलोर में हमने प्रोग्राम किया था, उसमें बड़े लोग आए और सभी से मिला था मैं, है और ना? सर तो मेरी भी अभी, बताइए। हाँ, काशी आओ, काशी आओ, काशी में मिलते हैं, वहां पे काशी में कब महाशिवरात्रि। से है सर? हाँ, कब है काशी में? महाशिवरात्रि पे है, 25-26। सबके साथ में शेयर करेंगे, इनविटेशन शेयर करेंगे। जरूर सर। मैं ठीक है, बिल्कुल कोशिश करती हूँ आने की। जरूर। थैंक यू सर हाँ जी। हाँ, और तो ये तो हमारे ही बंदे हैं सारे यहाँ पे आज, है ना? तो ज्यादा तकलीफ हो तो अपनी सारी तकलीफ किसको देना है? स्वामी जी को दे दो। स्वामी जी, इसीलिए आपसे शेयर किया है। आप ही ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं तो ये। अपनी सारी तकलीफ मुझे दे दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, कुंभक जरूर करते रहिए, हाँ? और काशी जरूर आना है सबको, काशी आना है सबको, जरूर ठीक है? जरूर सर जी। नमस्ते। Thank you, Swamiji. So, thank you everyone for joining us. And we will be sharing the Kashi details in your respective groups. You can join the WhatsApp group for the further guidance for Kashi details. Okay. Thank you so much, everybody. थैंक यू।